نے ایپیسوڈ نمبر 1 ریڈ کیا تھا، وہ قسمت سے ہاری از قلم کائنات خان کا۔ آج ہم ایپیسوڈ نمبر 2 ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ابراہیم شاہ بالآخر اسے دیکھنے کے لیے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اشفاق خان کو سمجھانے کے بعد بختیور بیگم خود بھی اس کے ساتھ ہی دروازے تک آئی تھیں۔ بختیور بیگم کو دیکھ کر فہیمہ نے جوش و خروش سے دونوں باہیں پھیلا کر انہیں گلے لگایا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وہ بختیور بیگم سے خاصی مانوس تھی۔ بچپن سے ہی اس کا ان کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ اور ایرن بچپن کی سہیلیاں تھیں اور اب 9ویں جماعت تک ساتھ پڑھ رہی تھیں۔ بختیور بیگم نے محبت سے اس کے دونوں گالوں کو باری باری چوما، اسے گلے لگاتے ہوئے پیار سے اسے دیکھنے لگیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹی، تم دروازے تک آتی ہو لیکن اندر آنے کا تردد تم سے نہیں ہوتا۔ مجال ہے جو کبھی اندر آ کے آنٹی کا حال چال ہی پوچھ لو، انہوں نے محبت سے شکوہ کیا۔ کل بھی تم دروازے تک آئیں اور اندر آئے بغیر باہر سے ہی چلی گئیں۔ فہیمہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، بس وہ کل ہم ذرا جلدی میں تھے آنٹی، اسی لیے چلے گئے، اسی لیے آج میں خاص طور سے آپ سے ملنے آئی ہوں۔ بختیور بیگم خوشی سے کھل اٹھیں۔ ضرور آؤ نا بیٹا۔ السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام، معاف کرنا بیٹے، میں فہیمہ کو اتنے دنوں بعد آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تمہیں دیکھ ہی نہ سکی۔ کیسے ہو بیٹا؟ اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک بیٹے، آؤ نا تم لوگ اندر آؤ۔ نہیں، میں بس یہاں سے فہیمہ کو چھوڑ کر دوست کے پاس جا رہا ہوں، واپسی پہ سے پک کر لوں گا۔ ایسے کیسے بیٹے، دروازے تک آئے ہو، گھر میں نہیں آؤ گے؟ چلو آؤ اندر، ایک کپ چائے تو ساتھ پی ہی سکتے ہو۔ ان کے اصرار کرنے پر ابراہیم شاہ اندر چل دیا۔ دور اندر کہیں وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے خود زبردستی اندر لے جائیں۔ اشفاق خان نے جس طرح گیٹ پر روکا تھا، اب اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود سے اندر جا سکے۔ وہ تینوں اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب بختیور بیگم کو ایک ضروری کال موصول ہوئی۔ بختیور بیگم کے حلقہ احباب میں کسی کا انتقال ہوا تھا اور انہیں فوراً وہاں جانا تھا۔ وہ معذرت خواہ انداز میں وہاں سے بشریٰ کو ساتھ لے کر چلی گئیں۔ اب کیونکہ ایرن کی دوست گھر پر موجود تھی تو انہوں نے اسے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ بختیور بیگم نے فہیمہ کو ایرن کے کمرے میں جانے کا کہہ دیا تھا، جبکہ ابراہیم کو انہوں نے وہیں بیٹھے رہنے دیا۔ ابراہیم کے لیے ملازمہ کے ہاتھوں انہوں نے چائے کے ساتھ بے شمار لوازمات بھجوائے تھے، لیکن جسے دیکھنے کی خواہش ابراہیم شاہ دل میں لے کر آیا تھا وہ تو اب تک نظر ہی نہیں آئی تھی۔ ابراہیم شاہ کے لیے لمحہ تختہ زار جیسا تھا، مانو اس کی جان سولی پہ لٹکی تھی اور لمحہ لمحہ وہ سسک رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود اٹھ کے ایرن کے کمرے میں چلا جائے اور اسے ایک جھلک دیکھ کے اپنی آنکھوں کو سکون دے۔ تبھی اچانک فہیمہ بھاگتی ہوئی نیچے آتی دکھائی دی۔ بھائی اب آ ہی گئی ہوں تو میں نے سوچا ہے تھوڑی دیر اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیتی ہوں، آپ مجھے شام کو لینے آ جائیے گا، میں امی کو بتا کر آئی ہوں۔ ابراہیم چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکا، آخر وہ اسے اسی لیے تو یہاں لایا تھا کہ دوست سے معذرت کر کے اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لے۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا بے شمار، اس کا یہ پلان کام نہیں کیا تھا۔ اس نے بے بسی سے زیر لب یہ شعر بڑبڑایا، انتظار میں تیری ہم خود کو یوں ہی خوار کریں گے، تیری ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے صبح سے شام کریں گے، مل جائے جو ساتھ تیرا خدا کا شکر کریں ادا، تو مل گئی تو زندگی تجھ پہ ہی نثار کریں گے۔ اس ایک لمحے میں ابراہیم شاہ کا چہرہ اتنا زیادہ مرجھا گیا تھا کہ اسے دیکھنے والا کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ جانے کب سے بیمار تھا۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا، وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک آخری کوشش کرنے کے بارے میں سوچا اور اشفاق خان سے کہا، سنیے، میری بہن کو کہیے کہ ذرا بالکنی میں آ جائے، میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اب واپس اندر نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں انتظار کرو صاحب جی، ہم اندر خبر بھجواتا ہے۔ اشفاق خان نے اس کو جیسے کہا ویسے ہی فوراً اپنی پستول سائڈ میں رکھتے ہوئے وہ اندر بھاگا۔ اندر جا کر اس نے نوابی کے ہاتھ ایرن کے کمرے میں فہیمہ کو پیغام بھجوایا۔ اس نے یہ پیغام دانستہ بھجوایا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید فہیمہ کے ساتھ ساتھ ایرن بھی بالکنی میں آ جائے اور اس طرح وہ اس کی ایک جھلک دیکھ سکے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ظاہر ہوا۔ جی بھائی، کیا کام ہے آپ کو؟ فہیمہ نے بالکنی سے آواز لگائی۔ اس نے بے اختیار اوپر دیکھا، اس گمان میں کہ شاید ایرن بھی ساتھ ہو، لیکن ایرن وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے شدید غصہ آیا اور اس غصے پہ قابو پاتے ہوئے اس نے کہا، آدھے گھنٹے بعد آ جاؤں گا میں، تو بس آدھے گھنٹے میں تیار رہنا۔ فہیمہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ واپسی کا سفر ابراہیم شاہ نے انتہائی ریش ڈرائیونگ کے ساتھ طے کیا تھا۔ اس نے مسلسل غصے میں بے در پہ کئی مکے اسٹیئرنگ پر مارے تھے۔ ایک دو بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے بھی بچا تھا۔ وہ شدید فرسٹریٹڈ تھا، جس مقصد سے وہ آیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا تھا۔ اسے ایرن کی ایک جھلک بھی نہیں دکھی تھی۔
इब्राहिम वापसी पर अपने दोस्त मुर्तज़ा गिलानी की तरफ आया था। मुर्तज़ा गिलानी इस वक्त छत पर मौजूद था। मुर्तज़ा 28 साल का आम शक्ल सूरत का नौजवान था। छत पर उसके पास कबूतरों का खजाना था और इस वक्त इब्राहिम भी वहीं उसकी छत पर मौजूद था। चूँकि मुर्तज़ा गिलानी एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए कबूतरबाजी के मुकाबलों से ही वो चंद पैसे कमाता था। शर्त से कमाए हुए पैसों से ही उसका घर चलता था। सियाह रंग के शलवार कमीज में मलबूस इब्राहिम अब उसकी छत पर बैठा बैठा उकता गया था। इब्राहिम को वहाँ बैठे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और मुर्तज़ा मुसलसल छत पर दीगर छतों पर मौजूद लोगों के साथ कबूतरबाजी के मुकाबले में मशगूल था। सारे जहान से बेफिक्र अपने नस्ली कबूतरों की टोली को उड़ा रहा था। उसकी एक सीटी पर कबूतरों की टोली फौरन से वापस आ जाती थी। इब्राहिम ने अब मुश्तइल होकर कोल्ड ड्रिंक का खाली कैन खींचकर मुर्तज़ा की टांग पर मारा था। मुर्तज़ा फौरन से उसकी तरफ मुड़कर आया था। क्या मसला है यार भाई तेरा? तू आया है तो बोल ना, चुपचाप बैठ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या मसला है? अब ना तू मुझे कबूतर उड़ाने दे रहा है। भाई देख, मैं तेरी तरह अमीर खानदान का चश्मो चिराग नहीं हूँ, मुझे अपना पेट पालने के लिए यही सब करना पड़ता है, मुर्तज़ा ने तब कर कहा। इब्राहिम ने बेसाख्ता उसे घूरी से नवाजा। मुर्तज़ा संभल कर बैठ गया। मेरा दिल यहाँ खून के आंसू रो रहा है और तुझे इस कबूतरबाजी से फुर्सत नहीं मिल रही। अब ऐसा भी क्या अनोखा है इसमें? दिल है तो खून के आंसू ही रोएगा, दिल में पानी की सप्लाई थोड़ी होती है जिगर। उसकी बात पर इब्राहिम को एक बार फिर तश आया था, लेकिन वो जब्त कर गया। अच्छा एक बात तो बता, इतना उदास तो तू तब भी नहीं था जब तेरी फर्स्ट ईयर में पहली सप्ली आई थी, उसने हाथ झुलाते हुए लापरवाही से कहा। अब की बार मुर्तज़ा ने उसको फुर्सत से देखा था और मुर्तज़ा के इस चेहरे की संजीदगी देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि मामला कुछ ज़्यादा संजीदा है। अबे चलना, अब इतना भी क्या सीरियस है भाई, बात बताना यार। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा जिसके एक सिरे पर नेट लगा था एक साइड पर रखते हुए कहा। इब्राहिम ने सारे लिहाज बालाए ताक रखते हुए उसे एक साथ 10-12 अलक़ाबात से नवाजा था। मुर्तज़ा ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए फलक शगाफ कहकहा लगाया था। इब्राहिम के कड़े तेवर देखकर उसे अपनी हंसी पर काबू पाना पड़ा। चल यार अब बता भी दे भाई, क्यों तपा हुआ है? पैंट के पांचे ऊपर करता वो भी इब्राहिम के बल मुकाबिल पंजरे के पास उखड़ू बैठ गया। मैं उसे देख नहीं पाया। किसे? क्या बात कर रहा है? वो आई ही नहीं मेरे सामने। वो किसी गैर मरई नुक्ते पर नजर टिकाए खाली उस ज़हनी के आलम में कह रहा था। ओ भाई, ओए बात सुन मेरी, ये 70 की दहाई के घिसे पिटे हीरोओं वाले डायलॉग ना मेरे सामने मत मार। जो कह रहे हैं साफ साफ बोलना भाई, पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? यार मैं फ़हीमा की दोस्त को पसंद करता हूँ। ओह अच्छा, हैं क्या? इब्राहिम की बात पर मुर्तज़ा को शौक लगा। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आपको एक लड़की से मोहब्बत हो गई और वो आपकी बहन की दोस्त है, तो यकीनन वो भी फ़हीमा जितनी ही होगी। मुर्तज़ा ने उसे तनकीदी नज़रों से देखते हुए कहा। प्लीज़ डोंट जज मी, इब्राहिम ने उसकी बात के जवाब में कहा। हाँ ठीक है, जज नहीं कर रहा। अच्छा चल छोड़िए, बता के वाकई मोहब्बत है, बस ऐसे ही क्रश है, इश्क है? वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। तो इजहार कर दे, मैंने कौन सा तुझे रोका भाई? मैं कौन सी तेरी महबूबा हूँ यार? मेरे सामने क्यों रोनी सूरत बनाकर बैठा है? मुर्तज़ा ने मसले का हल पेश करते हुए कहा। कैसे करूँ? कल कोशिश की थी लेकिन वो कुछ सुने बगैर ही चली गई। और मौसूफ ने कैसे कोशिश की थी बताना पसंद करेंगे शाह साहब आप? मुर्तज़ा ने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। इब्राहिम ने कल का सारा वाक़या हर्फ बहर्फ बयान कर दिया। उसकी बात के जवाब में मुर्तज़ा ने बिला तरद्दुद अगले जवाब के बजाय सीधा सवाल पूछा था। अकल घास चढ़ने गई है या कहीं गिरवी रख दी है आपने? इब्राहिम ने एक ज़ोरदार घूंसा उसकी कमर पर मारा था जिसके दर्द से वो बिलबिला गया था। फिर फौरी संभलते हुए कहने लगा, मेरा मतलब है मेरे भाई पहली बार भाभी को गाड़ी में बिठाया था, इस छिचोरपन की ज़रूरत नहीं थी। वैसे इसमें छिचोरपन वाली क्या बात है? मेरा मतलब है पहली बार वो तेरी गाड़ी में बैठी थी, थोड़ा एहतियात करता बेहतर था। अब तू उनके घर जाएगा तो अपनी मर्जी से ही तेरे सामने आएंगी ना, और ना जाना चाहेंगी तो नहीं आएंगी, समझ रहा है ना? पर अगर वो तेरे घर आएगी तो तू जब चाहे सामने जाकर बैठ सकता है। वो मायना खेजी से मुस्कुराया। एरिन अब मान भी जाओ ना, माफ कर दो यार। Yesterday I was extremely exhausted. That's why I fell asleep. तुम्हें अंदाज़ा है मेरे लिए कितना ऑकवर्ड था तुम्हारी गाड़ी में इस तरह आधे घंटे तक उस ऑकवर्ड सिचुएशन में तुम्हारे भाई के साथ बैठना, और वो भी उस इतने अजीब से गाने के साथ। हाँ, मुझे तो सोच के इरिटेशन हो रही है। अच्छा यार अब छोड़ो ना, वैसे भी मैं तो इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल समझ रही थी।
लेकिन फिर भाई ने मुझे कहा कि नहीं, मुझे स्पेशली तुम्हारे घर आकर तुमसे कल के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे इस तरह तुम्हें गाड़ी में बिठाकर सोना नहीं चाहिए था। भाई के समझाने पर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मेरी गलती थी। देखो नहीं, कितने प्यारे फ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम्हें रेड रोजेस पसंद हैं। अब तो मूड सही कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फ़हीमा ने मोहब्बत से उसके सामने 3 से 4 बार अपनी पलकों को यकबारगी से झपका। एरिन उसकी बात नहीं सुन रही थी, वो हैरान थी, लेकिन उसने इस बात का जिक्र फ़हीमा से नहीं किया था। वो दिन दिन में शर्मिंदा हो रही थी कि उसने बगैर सोचे समझे नवाबी के साथ मिलकर क्या से क्या नतीजा अखज़ कर लिया था। पर अब जबकि फ़हीमा ने सारी बात क्लियर कर दी थी तो मानो उसके दिल से ढेरों बोझ सरक गया था। अच्छा बाबा, ठीक है, माफ़ किया। जाओ, क्या याद करोगी तुम भी? तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा था? एरिन ने खुशदिली से बेड पर धड़ाम से गिरते हुए कहा। फ़हीमा ने खुशी से खिलखिलाते हुए उसके दोनों गालों को नोचा और उससे इस बात की तायद चाही, और एकदम एरिन का कमरा कहकहों से गूंज उठा। आधे घंटे बाद इब्राहिम शाह फिर से एक बार हुसैनी मैंशन के बाहर मौजूद था। उसने अशफाक खान से फ़हीमा को बुलाने का कहा। फ़हीमा फौरी तौर पर बाहर आ गई थी। कुछ देर पहले वाला इब्राहिम शाह के जुनूनी अंदाज में अब काफ़ी ठहराव था। एरिन ने दिल में सोचा कि शायद फ़हीमा के भाई को भी वो सिचुएशन काफ़ी अनकम्फर्टेबल लग रही होगी, इसीलिए वो मुझे इस तरह से देख रहे थे, और शायद वो कल माजरत ही करना चाहते थे। मैं भी ना पता नहीं क्या से क्या सोच रही हूँ। यकदम जाने उसे क्या हुआ था, वो दौड़कर बालकनी में आ गई फ़हीमा को हाथ हिलाने के इरादे से, मगर बालकनी में आते ही जो मंजर उसकी आंखों ने देखा उसने उसे एक बार फिर कशमकश का शिकार कर दिया था। फ़हीमा तो ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुकी थी, जबकि इब्राहिम शाह सियाह कार की छत पर हाथ रखे ऊपर ही उसकी बालकनी में देख रहा था। वो हाथ तो फ़हीमा को हिलाने आई थी, लेकिन सामने इब्राहिम शाह को देखकर थोड़ा गड़बड़ा गई। वो इस वक्त भी सियाह नाइट गाउन में मलबूस थी, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो उसने कपड़े बदलने का तरद्दुद नहीं किया था। बाल खिले थे, उसका हुलिया मुकम्मल रफ था, लेकिन वो इस वक्त भी गज़ब ढा रही थी। इब्राहिम शाह की जैसे रूह सरशार हो गई। उसके दिल को वो करार मिला कि जिसके बारे में अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। एरिन बेरब्त होती सांसों के साथ अंदर कमरे की जानिब भागी। एरिन का दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि मानो हलक में ही आ जाएगा। एरिन काफ़ी खौफज़दा थी और शायद शर्मिंदा भी। उसे अपनी इस हमाकत पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? ये मैं बिल्कुल ही पागल हूँ। मैं किस तरह ऐसे जा सकती हूँ भी नाइट गाउन में? या अल्लाह, मुझे अकल दे, मुझे अकल दे। मैंने कैसे उसके भाई को इतना मासूम समझ लिया? या फिर हो सकता है मैं अब भी गलत हूँ। क्या पता वो ऊपर आसमान में कोई चीज़ देख रहा हो। मैं पागल हो जाऊंगी। समझ में नहीं आ रहा फ़हीमा से इस बारे में बात करूं क्या, पर उससे क्या कहूंगी? वो तो इतने बड़े हैं, शायद मैं ही कुछ गलत सोच रही हूँ। मुझे फिल्में देखना कम करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फिल्में देख रही हूँ मैं। तुमने एरिन की अम्मी से झूठ क्यों बोला कि तुम उनसे मिलने गई हो? तुम तो एरिन से माजरत करने गई थी। यार भाई, आप कब समझदार बनेंगे? आपने देखा नहीं बख्तावर आंटी कितनी मोहब्बत से मिली थी, उन्होंने कितने प्यार से मुझे बुलाया। उसके बाद वो शिकवा कर रही थी कि मैं उनसे मिलने नहीं जाती। अब कुछ तो कहना था ना। मैं उनसे कहती कि मैं कल की बात पे माजरत करने आई हूँ तो वो पूरी डिटेल मांगती मुझसे, और फिर मैं क्या बोलती? उनकी बेटी को गाड़ी में बिठाकर मैं खुद तो सो गई। उसके घर वाले जितनी मोहब्बत उससे करते हैं उतने ही सख्त मिजाज भी हैं। शबीर अंकल का गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। माना कि वो एरिन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके घर के कुछ उसूल हैं। शुक्र है आपने ये सवाल वहाँ नहीं करा, वरना क्या मुंह दिखाती मैं बख्तावर आंटी को। ओके, काम डाउन, ब्रेक लगाओ। तुम क्यों तेज गाम बन गई हो? मैंने तो बस एक बात कही है, और ऐसा भी क्या हो गया जिस पर उसकी वालदा इतना परेशान हो जाती? असल में भाई, उनके घर के कुछ उसूल हैं। आप मेरे भाई हैं, उसके सगे भाई थोड़ी हैं। अब वो आपके साथ और मेरे साथ गाड़ी में आई है, इस बात पर भी यकीनन उसकी अम्मी ने उसे सलावाती तो सुनाई होंगी। वो बता नहीं रही, वो अलग बात है। इसका मतलब वो लोग काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उसूल पसंद है, ये कह सकते हैं। काफ़ी रिवायती हैं, और क्या कह सकते हैं। बहरहाल एरिन मेरी बेहतरीन दोस्तों में से एक है। मुझे वो पसंद है, और उसके घर वाले भी हमेशा मेरी इज्जत करते हैं। अच्छी बात है ना। वैसे थैंक यू सो मच भाई, मुझ जैसी बेवकूफ़ को धक्के मार के यहाँ लाने के लिए। अगर आप नहीं लाते ना, एरिन तो मुझसे सच में बहुत नाराज़ थी। क्यों नाराज़ किस बात पर थी? ऑब्वियसली जब वो मेरे साथ आई थी तो उसे मुझसे बातें करनी थी और मैं सो गई। इस तरह उसे सारे रास्ते चुप रहना पड़ा, बस इसीलिए नाराज़ थी।
दानिस्ता तौर पर फ़हीमा ने एरिन की बताई हुई बात और शिकवे को गोल कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई शर्मिंदा हो या फिर कोई ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो। और फिर एरिन उसकी दोस्त थी, उसे उसकी भी इज्जत रखनी थी। अरसा हो गया बख्तावर, तुम तो कहीं आती जाती ही नहीं हो। जनाजे के बाद ख़वातीन का जो आलम होता है वही था। कुछ बैठी बातें कर रही थी, कुछ सिपारे पढ़ रही थी और कुछ बख्तावर बेगम को घेरे एरिन के बारे में पूछगछ करने के बहाने ढूंढ रही थी। बस क्या बताऊं भाभी, घर में ज़िंदगी मसरूफ़ होकर रह गई है। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनकी वजह से कहीं निकलना ही नहीं होता। यही तो मैं कह रही हूँ बख्तावर, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, आया जाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप रखा करो। अब देखो माशाल्लाह, कल सीमी की फैमिली की जो डिनर पार्टी थी उसमें मैंने सुना कि एरिन तो क़यामत ढा रही थी। जी भाभी माशाल्लाह, बस आप सबकी मोहब्बत है। अल्लाह मेरी दोनों बेटियों को बुरी नज़रों से महफूज रखे। माशाल्लाह दोनों ही बहुत प्यारी हैं। उन्होंने दानिस्ता तौर पर बुशरा को देखकर कहा। बुशरा का उतरा चेहरा उन्हें हर बार परेशानी में मुब्तला कर देता था। माशाल्लाह से कितने बरस की हो गई है एरिन? बख्तावर बेगम की ताई सास ने एरिन की उम्र के बारे में पूछा था। 13 बरस की हो गई है, 14वीं में लगी है। बख्तावर बेगम ने इंतहाई शाइस्तगी से अपनी सास को जवाब दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कहीं हाथ पीले करने का इरादा है कि नहीं? नहीं ताई अम्मी, अभी इतनी जल्दी तो नहीं सोचा, अभी बच्ची बहुत छोटी है। छोटी से क्या मुराद है भाई? हम खुद 13वें बरस में बिहा कर आए थे और तुम भी तो ऐसे ही कम उम्री में बिहा कर लाई गई थी। आजकल के दौर में बेटियां वक्त से घर की हो जाएं, यही सबसे बेहतरीन चीज़ है। हम तो बुशरा के भी यूनिवर्सिटी जाने के ख़िलाफ़ हैं, जो सीधी बात है। ऐसी बात नहीं है ताई अम्मी, बुशरा डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए उसके बाबा उसे बना रहे हैं। हमारा कोई बेटा तो है नहीं, आपको पता है। हम दोनों जाने कब तक ज़िंदा हैं, इसलिए बेटियों को खुद मुख्तार करना चाहते हैं। ठीक ही कह रही हैं भाभी, बेटियों का खुद मुख्तार होना अच्छी बात है, लेकिन भाभी कम से कम कहीं नस्बत तो तय कर दें बच्चियों की। जी इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कोई भी एक देख लेंगे। अब इससे क्या होता है कि बुशरा की पहले करनी है क्या एरिन की? जिसका पहले लगे भाभी उसी का कर दें, मैं तो सही कह रही हूँ। जी तुम सही कह रही हो सोबिया। सोबिया उनके रिश्ते की देवरानी थी और अक्सर ऐसे मौक़ों पे सही बात कर मामले को संभाल लेती थी। बख्तावर बेगम को कुछ हद तक धारस हुई थी। सोबिया ने काफ़ी हद तक उनकी हिमायत करके उन्हें इस मसले से निकाल दिया था। हर दूसरा बंदा उनसे एरिन की निस्बत पर बात कर रहा था। एरिन ने कल की दावत के बाद हर किसी के दिल में जगह बना ली थी। शाम के 7 बजे शाह मंजिल का हाल कुछ यूँ था कि इब्राहिम शाह की वालदा अपने कमरे में आराम फरमा रही थी, जबकि फ़हीमा अपनी दोस्तों की एक गैदरिंग सजाए बैठी थी। इब्राहिम की जब नज़र उसकी दोस्तों पर पड़ी तो उसे बेइख्तियार एरिन का ख़्याल आया। इब्राहिम से रहा न गया, उसने फ़हीमा को फ़ौरन कह दिया, फ़हीमा ये सब तुम्हारी दोस्तें हैं ना? जी भाई, ये सब मेरी दोस्तें हैं। तो तुम एरिन को भी बुला लेती, वो भी तो तुम्हारी दोस्त है। कहाँ भाई, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? भाई अभी तो उसके घर से आए हैं यार हम लोग, क्या हो गया है आपको? मेरा मतलब ये था कि देखो दोस्त तो सब बराबर होते हैं ना, तो सारे दोस्तों को लेकर चलो। इब्राहिम ने कुछ गड़बड़ाते हुए बात को गोलमोल कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे ये तो मेरी यही सोसाइटी की फ्रेंड्स हैं। एरिन मेरी स्कूल फ्रेंड है, लेकिन अगली बार उसे ज़रूर बुलाऊंगी। आप मुझे हमेशा सही बात समझाते हैं। जाते जाते इब्राहिम शाह के कदम मंजमंद हो गए। उसने हल्का सा मुड़कर बालों को पीछे करते हुए फ़हीमा को देखकर आईब्रो उचकाकर इशारे से पूछा, मसलन ये कि आज अगर आप मुझे एरिन के घर ना लेकर जाते तो वो मुझसे नाराज़ ही रहती। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा हाँ, मेरे साथ रहोगी तो अक्लमंद हो जाओगी, इब्राहिम ने कुछ इतराते हुए कहा और वहाँ से वॉकआउट कर गया। अगले दिन एरिन जब स्कूल पहुँची तो इब्राहिम फ़हीमा के साथ ही खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। फ़हीमा ने एरिन को देखते ही हाथ हिलाया और दौड़कर उसके पास आ गई। इब्राहिम भी उसके साथ आहिस्ता कदमों से चलता हुआ आया। फ़हीमा को देखकर एरिन ने कहा, तुम अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हो, क्लास में चली जाती ना। सच तो ये कि वो इब्राहिम की नज़रों से कुछ गड़बड़ाई हुई थी जो मुस्तकिल उसी पर ही जामिद थे। ऐसे कैसे चली जाती, हम दोनों हमेशा क्लास में साथ जाते हैं ना, और तुम्हें पता है जब तक तुम नहीं आती भाई यहाँ से हिलते ही नहीं हैं। क्या?
मेरा मतलब है कि जब तक तुम नहीं आती भाई नहीं जाते। उन्हें उनकी बहन का अकेले खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब मैं चलता हूँ। फ़हीमा एरिन से खुशगपियों में मसरूफ़ क्लास की तरफ बढ़ रही थी। उसने अपने भाई की बात नहीं सुनी थी, जबकि एरिन ने दानिस्ता तौर पर उसे नज़रअंदाज किया था और उसकी तरफ देखा तक नहीं था। इब्राहिम ने फिर कहा, तो मैं जाऊँ? अब की बार फ़हीमा ने पीछे मुड़ के कहा, जी भाई जाइए ना, आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत थोड़ी है। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। उसका बार बार कहना महज इसलिए था कि बस एक बार ही सही एरिन उसे मुड़ के देख तो ले, लेकिन एरिन कसम खा कर आई थी कि आज के बाद जो चाहे हो जाए वो कभी उस इंसान की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेगी। अब की बार इब्राहिम शाह शिकस्त खोर्दी के आलम में वापस मुड़ गया, लेकिन वो जानता था कि उसे आगे क्या करना है। दोपहर के 1 बजे जब उनकी स्कूल से छुट्टी हुई तो इब्राहिम ही फ़हीमा को लेने आया था रोज़ की तरह। एरिन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि एक तेज़ मोटरसाइकिल सवार उसके पास से बहुत तेज़ी से बाइक लेके गुजरा। अगर एक लम्हा पहले इब्राहिम उसे खींच के अपने करीब ना करता तो एरिन को वो बाइक वाला लाजमी उड़ा जाता। उस बाइक सवार ने मुंह अपना छुपाया हुआ था, उसके मुंह पर ढांटा था। एरिन को हैरत हुई, लेकिन वो बहुत खौफज़दा भी हो गई थी। उसने बेइख्तियार इब्राहिम के हाथ को देखा। एरिन को छुड़ाने में उसका हाथ बाइक के हैंडल पे लगा था और शदीद खून बह रहा था। एरिन को तशवीश हुई और वो घबरा गई। उसने फ़ौरन ड्राइवर से मदद मांगी। जावेद चाचा ये देखिए ना, इन्हें क्या हुआ है, खून निकल रहा है। ओहो साहब जी, क्या हुआ आपको? गुड्डी बीबी आप परेशान ना हो, आप बैठे, मैं करीब दुकान से कुछ लेकर आता हूँ जिससे मरहम पट्टी कर सकूँ फ़िलहाल तो। चाचा हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, ये इस हाथ से कैसे ड्राइव करेंगे? गुड्डी बीबी आप फिक्र ना करें, मैं ले जाता हूँ, पहले आपको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है चाचा, एक काम करें, हम तीनों को गाड़ी में बिठा लें, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं और मुझे घर छोड़ दें। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, चला जाऊँगा। भाई आप कैसे ड्राइव करोगे इस हाथ से यार? फ़हीमा को वाकई तशवीश हुई। मैं चला लूँगा गाड़ी, तुम क्यों टेंशन लेती हो? एरिन के लाख इसरार पर भी वो एरिन की गाड़ी में नहीं बैठा था। एरिन को दिल ही दिल में बेहद शर्मिंदगी हुई। जिस इंसान को वो इतना गलत समझ रही थी, आज उसने अपनी जान पे खेल कर एरिन की जान बचाई थी। जावेद चाचा उस बाइक का नंबर नोट कर चुके थे और उन्होंने एरिन को कहा, बीबी जी मैं इस गाड़ी वाले का ना नंबर नोट कर चुका हूँ, मैं बड़े साहब को दूंगा, फिर आप देखिएगा वो क्या करेंगे इसके साथ। एरिन फ़ौरन घबरा गई। वो अपने वालिद के गुस्से को बहुत खूब जानती थी। उसने जावेद चाचा को सख्ती से मना कर दिया। चाचा आप ऐसा कुछ भी घर में नहीं बताएंगे, आप बाबा का गुस्सा जानते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो खामखा परेशान हो, और ये तो एक हादसा था, किसी के साथ भी हो सकता है। अब देखें मैं महफूज हूँ। उसकी लाख मिन्नत समाजत से समझाने के बाद बिलाखिर जावेद चाचा की समझ में आ ही गया था और उन्होंने अपने मुंह को वहीं बंद कर लिया था। लेकिन अब एरिन को अंदर ही अंदर इस बात का दुख और पछतावा था कि उसे बचाने की खातिर आज एक इंसान बुरी तरह जख्मी हुआ है। यकदम एरिन का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। वो शिकस्त खोर्दा से हाल में घर में दाखिल हुई। मुलाजमीन ने उसे देख के जानदार मुस्कुराहटों का तबादला करा। वो सब खुश हो जाते थे एरिन के घर में आते ही, क्योंकि रौनक वापस आ जाती थी। एरिन के स्कूल के वक्त में घर में इंतहाई सन्नाटा होता था, घर मानो काटने को दौड़ता था। लेकिन एरिन के आज की हालत देखकर हर कोई तशवीशनाक था। बख्तावर बेगम उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर घबरा गई। गुड्डी तुम ठीक तो हो बेटी, क्यों इतनी मायूस लग रही हो? क्या आप कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ बेटी तुम ठीक तो हो? हाँ सर में बस थोड़ा दर्द है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है तुम कमरे में जाओ, मैं राशिदा के हाथ कुछ खाने को भिजवाती हूँ। नहीं अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अभी थोड़ी देर आराम करूँगी, भूख लगेगी तो मांग लूँगी। बख्तावर बेगम को लगा कि गुड्डीश वाकई ही बीमार है। उन्होंने भी ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया और उसे कमरे में जाने दिया। कमरे में आकर वो बेहाल सी बिस्तर पे धड़ाम से गिर गई। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ रहा था। वो नकाब पोश बाइक वाला नौजवान जो तेज़ी से बाइक लेके गुजरा था, वो रह रहकर इब्राहिम शाह के एहसान तले डूब रही थी, क्योंकि अगर एक लम्हा भी देर हो जाती तो शायद आज एरिन सही सलामत घर ना आती। एरिन उसकी मशकूर थी और एहसानमंद भी, कुछ हद तक शर्मिंदा भी थी। किसी इंसान ने उसकी जान बचाने का एहसान किया था और वो बेहिस्सों की तरह वापस घर आ गई थी। उसे ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाना चाहिए था। एरिन को रह रहकर इस बात पर खुद पे शदीद गुस्सा आ रहा था।
अगर उन्होंने कहा भी था कि उनका हाथ ठीक है, कम से कम मुझे तो इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए था। उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकती थी। या अल्लाह, मेरा दिमाग सही वक्त पे काम क्यों नहीं करता? पता नहीं कैसे वो लोग घर गए होंगे। थोड़ी देर तक अपने दिमाग से इसी तरह लड़ने के बाद आखिर उसने खुद को झूठे दिलासे देने में शुरू कर दिए। मुझे वैसे फ़हीमा की फ़िक्र है। फ़हीमा अगर घर सही नहीं पहुंच सकी तो वो मेरी एक स्कूल फ्रेंड है। मैं स्कूल में किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी? अब उसने खुद को झूठे दिलासे देने शुरू कर दिए थे, लेकिन चोरपना उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। कुछ तो था जो वो छुपा रही थी, सबसे या फिर खुद से। इब्राहिम शाह ने दिल में बेइख्तियार सुकून का सांस लिया था। अगर एरिन अपने ड्राइवर को मना ना करती और ये मामला पुलिस तक जाता तो बेशक ये राज खुल जाता कि वो बाइक सवार कौन था। इब्राहिम शाह के दिल में एक मुहिम सी उम्मीद जागी। एरिन का बौखलाया हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। क्या उसे मेरी फिक्र थी? वो धीरे से बड़बड़ाया। फ़हीमा जो बाहर के नज़ारे देख रही थी एकदम अपने भाई की तरफ मुतवज्जा हुई। क्या आप कुछ कह रहे हैं भाई? फ़हीमा का चेहरा उतरा हुआ था। उसने अपने भाई से कहा, भाई हमें एरिन की मदद ले लेनी चाहिए थी। आपके हाथ से इतना खून रिस रहा है। कुछ नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। भाई, मुझे इस मिसाल की कभी समझ नहीं आती। मर्द को दर्द क्यों नहीं होता? क्या मर्द इंसान नहीं होता? मेरे हिसाब से तो मिसाल ऐसे होनी चाहिए कि मर्द कभी किसी को दर्द नहीं देता। कैसा? बहुत समझदार हो गई हो तुम। हाँ, बस कभी गुरूर नहीं किया। फ़हीमा ने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का फुल्का करने की कोशिश की। शाह मंजिल का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। इब्राहिम के हाथ से रिश्ता खून देखकर उसकी वालदा ने वावेला कर दिया था। हाय हाय, मैं मर गई, मेरे मुंडे नू की हो गया वे, कड़ी नज़र लाग पई है नू। शाह मंजिल में मौजूद उसकी वालिदा ज़्यादातर पंजाबी ही कहती थी। उस वक्त या तो जिस वक्त वो ज़्यादा परेशान हो या जिस वक्त वो ज़्यादा खुश हो, अमूमन वो उर्दू में ही बात करती थी। इब्राहिम उन्हें देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराया। अम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों इतनी टेंशन लेती हैं? हाँ हाय, कैसे टेंशन नहीं लूँ है। एक मेरा उठ पलट्ठी दा मुंडा है तो एक ए जड़ा बैठा सी ना निकम्मा। उन्होंने इब्राहिम शाह के छोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, ਇਹਦੇ ਵਾਸਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਕਾਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। वो इसी तरह बेशुमार सलावातें उन अजनबियों को सुना रही थी जिनकी नज़र उनके ख़याल में उनके बेटे को लगी थी। शकीला नामी वो मुलाजिमा भागती हुई फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और फिर फ़हीमा ने अपने भाई की बैंडेज की। चूँकि एरिन ने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए रात का सारा खाना सिर्फ और सिर्फ एरिन की पसंद का बना था। बुशरा ने बड़ी प्यार से एरिन के लिए प्लेट सजाई थी। वो अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करती थी। शब्बीर साहब अपनी दोनों बेटियों में बेबहाश मोहब्बत देखकर खासे महजूज हो रहे थे। बुशरा अब एरिन के लिए उसकी पसंदीदा मटन बिरयानी निकाल रही थी और एरिन का किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका दिल सिरे से उचाट था। उसका ना तो यहाँ बैठने का इरादा था और ना ही खाने का। वो किसी गैर मरई नुक्ते पे नजर टिकाए दोनों हाथ टेबल पे रखकर उन पे थोड़ी टिकाए बैठी थी। वो किस सोच में गुम थी कोई नहीं बता सकता था। उसके दिलो दिमाग के बीच चलने वाली उस जंग ने उसे थका दिया था। तब शब्बीर साहब उसे पुकार उठे, गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी। बुशरा ने अब की बार उसे हल्का सा ढौका दिया। जी जी, क्या सोच रही हो? दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया? आपके बख्तावर बेगम अपनी प्लेट में सालन डालते हुए बोली। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, उसने एक मस्तूरी मुस्कुराहट मुंह पर सजाते हुए कहा। शब्बीर साहब जो बेहद ज़ौक़ और शौक़ के साथ खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, बेगम की ये बात सुनकर उनकी तीवरियाँ चढ़ गईं। गुड्डी ने दोपहर से कुछ नहीं खाया और आप ये हमें अब बता रही हैं बेगम? मुझे लगा कि इसकी तबीयत ठीक होगी तो खा लेगी। दोपहर में इसके सर में दर्द था, बख्तावर बेगम ने निवाला मुंह में रखते हुए वजाहत दी। बुशरा ने मुंह में मौजूद चावल ख़त्म करने के बाद अपने लबों को नैपकिन से थपथपाया और एरिन से कहा, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब थी, तुमने बताया क्यों नहीं? बाबा चले ना, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अंसारी साहब को कॉल करता हूँ, अभी आ जाएंगे। शब्बीर साहब खाने की मेज़ से उठ गए और टेलीफोन की जानिब बढ़ गए। वहाँ जाकर उन्होंने अंसारी साहब को कॉल की जो कि उनके फैमिली डॉक्टर थे और उन्हें फ़ौरन आने की तजवीज़ दी।
انصاری صاحب بغیر ٹائم ضائع کری پورے 20 منٹ میں شبیر حسین کے گھر پر موجود تھے۔ حسینی مینشن میں ہر ایک پریشان تھا۔ ان کی کھلکھلانے والی اور مسکرانے والی گڈی آج چپ چپ تھی، مانو سبھی کے دل بوجھل ہو گئے تھے۔ کسی نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ مالکان تو ایک طرف، ملازموں کے حلق سے بھی نوالے نہیں اترے تھے۔ ڈاکٹر انصاری نے ایرن کی نبض پکڑ کر چیک کی۔ بظاہر سب کچھ صحیح تھا، بی پی بھی نارمل تھا، لیکن انہیں وہ کسی گہری سوچ میں لگی۔ گڈی بیٹی، آپ کس سوچ میں ہیں؟ آپ کے والدین خاصے پریشان ہو گئے ہیں، کیا کوئی بات ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ انہوں نے برجستہ سب کے سامنے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ نہیں تو انکل، میں کسی سوچ میں نہیں ہوں، بس تھوڑے ایگزامز کی ٹینشن ہے۔ لیکن تمہارے ایگزامز تو ابھی ہونے میں 2 مہینے ہیں۔ بشرا نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ وہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ 2 مہینے ہی تو ہیں، کیسے گزر جائیں گے پتہ ہی نہیں لگے گا۔ میں کیا سوچ رہی تھی بابا کہ میں اسٹڈیز پہ فوکس کروں۔ بیٹی، آپ اسٹڈیز کو لے کے اتنا زیادہ ٹینس تھیں؟ میں تو سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کھانا پینا کھاؤ اور ریلیکس ہو جاؤ۔ انصاری صاحب نے اسے کچھ طاقتور ادویات لکھ کر دی، کیونکہ ان کے حساب سے وہ اندرونی خاصی کمزور تھی۔ مرض عشق کا آغاز ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب گڈی کو کون سمجھاتا کہ وہ گڈی اب گڈی نہیں رہی تھی۔ وہ جن پریشانیوں میں الجھ رہی تھی وہ تو اب اس کے ساتھ زندگی بھر لگنے والی تھی۔ اس کے دل میں وہ جذبات سر اٹھانے لگے تھے جن جذبات سے وہ خود کو روک رہی تھی۔ اسے صبح سے لے کر اب تک ایک ہی انسان کی فکر ستائے جا رہی تھی، اور وہ تھا ابراہیم شاہ۔ وہ اپنے دل میں تہیہ کر چکی تھی۔ ابراہیم شاہ بیت پر چت لیٹا تھا۔ اسے بار بار ایرن کا وہ حلیہ یاد آ رہا تھا جب وہ اس کے ہاتھ سے بہتے خون کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ سہمی ہوئی آنکھوں میں خوف چھلک رہا تھا، لیکن اس کے لیے فکر مندی کی وہ لکیریں جو اس کی پیشانی پر پڑی تھی وہ انہیں بہت اچھے سے پہچان چکا تھا۔ یاد آ رہی ہے تیری، یاد آ رہی ہے، یہ وہ گانا تھا جو اس نے اپنے کمرے میں ٹیپ ریکارڈر پر لگایا ہوا تھا، اور اسے سن کے وہ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک فہیمہ ہاتھ میں سوپ کا باؤل لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بھائی کو دیکھ کر چھٹک گئی۔ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ فہیمہ کو اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا لگا۔ وہ گھبرا کر فوراً بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بھائی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہیں پر بھی نہیں سنا کہ ہاتھ میں چوٹ لگی تو دماغ پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ کیا بک رہی ہو تم؟ ابراہیم ایک دم چڑھ کر اٹھ بیٹھا۔ نہیں، میرا مطلب آپ ایسے خلا میں دیکھ کے مسکرا رہے تھے، مجھے آپ کے اوپر پاگل ہونے کا گمان ہوا۔ آخری بات اس نے دانستہ بڑبڑا کر کہی تھی۔ اگر ابراہیم شاہ اس کے الفاظ سن لیتا تو بے شک اس کی خیر نہیں تھی۔ ابراہیم شاہ کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ابراہیم کی امی دوسری بیوی تھیں، اور پہلی بیوی سے ان کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی زرمینہ سعودیہ میں شادی کے بعد رہائش پذیر تھی۔ وہ ایک اعلیٰ اور حسب نسب والے خاندان میں رخصت ہو کر گئی تھی۔ ابراہیم کی والدہ اب شوہر کے بغیر زندگی گزار رہی تھی، جبکہ ابراہیم سے چھوٹا ان کا ایک بیٹا اور بھی تھا جو کہ فہیمہ سے بڑا تھا۔ ابراہیم شاہ کی حویلی بھی کافی زیادہ وسیع و عریض تھی اور ملازموں سے بھری تھی۔ اس کے گھر میں ہر چیز کی آسائش موجود تھی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی خواہش ابراہیم شاہ نے کبھی کی ہوتی اور اس کے خاندان نے پوری نہ کی ہوتی۔ اسی لیے اب اس کے دل میں کسی اور کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی، لیکن کیا یہ خواہش پوری ہو بھی سکے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہی ہوگا۔ فہیمہ نے کل اسکول سے دانستہ چھٹی کی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی ایسی حالت میں اسے گھر پر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابراہیم سے کافی زیادہ کلوز تھی اور ابراہیم کے درد سے اسے درد ہوتا تھا۔ ایرن جب اسکول پہنچی اور فہیمہ کو نہ پایا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ فہیمہ آج اسکول نہیں آئی ہے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ایرن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ گھر جائے گی اور اپنی والدہ سے فہیمہ کے گھر جانے کی اجازت طلب کرے گی۔ جس وقت ایرن گھر پہنچی اس وقت بختاور بیگم تخت پر بیٹھی لاؤنج میں اپنی چاندی کی سرمدانی سے آنکھوں میں سرما لگا رہی تھی اور فون پہ کسی سے محو گفتگو تھی، اسی لیے انہوں نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ ایرن نے اشاروں کناروں میں ان سے پوچھا کہ کیا وہ فہیمہ کے گھر جائیں۔ فہیمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آج اسکول نہیں آئی ہے، اسے اس کی عیادت کرنے جانا ہے۔ کیونکہ بختاور بیگم بے حد محو گفتگو تھی تو انہوں نے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔
एरिन ने भी तफसीली इजाज़त के बारे में सोचा नहीं। वो जानती थी अगर वालिदा ने ध्यान से बात सुनी तो शायद इजाज़त ना मिले। वो फ़ौरन कमरे में गई, पैरों को छूती उसने पिंक रंग की सिल्क की फ़्रॉक पहनी, बालों को आधे कैचर में बांधकर बाकी बालों को पुश्त पर खुला छोड़ दिया, दुपट्टे से अच्छी तरह खुद को ढका और अब वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसकी रवानगी फ़हीमा के घर के लिए थी, बगैर ये सोचे समझे कि इसका नतीजा क्या निकलना था। वो उसके घर पहुंच गई थी। रास्ते से उसने एक खूबसूरत सा बुके भी बनवाया था और एक चॉकलेट का बॉक्स भी लिया था। वो 13 साल कम उम्र लड़की थी। उसे नहीं मालूम था आयादत के लिए क्या लेकर जाए, लेकिन उसने अपने वालिदैन को हमेशा लोगों के घर जाते हुए कुछ न कुछ लेते देखा था, तो वही सलीका उसमें भी आ गया था। जिस वक्त वो शाह मंजिल पहुंची, उसकी आंखों ने वो मंजर देखा जिसकी उसे तवक्को नहीं थी।